کرتی ہیں تو ہم ان کو اسٹیج پہ ویلکم کریں گے. تو ابھی جو پہلا پیپر ہے وہ ایک سیزنڈ انجینئر ہے ماشاءاللہ, ایک بڑا نام ہے کنسلٹنسی میں, کوئی 37 ایئرس کا الحمدللہ ان کا ایکسپیرینس ہے, اور انٹرپرینیور ہیں, اور ان کی اپنی فرم ہے جو MAB کے اندر ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی ایکسپرٹیز رکھتی ہے, اور بہت سارے نیشنل انٹرنیشنل پروجیکٹس جو ہیں وہ الحمدللہ ان کے پاس ہیں, اور ہم ان کو جانتے ہیں ماشاءاللہ. میں ان کو انوائٹ کروں گا, انجینئر اصغر ایچ صدیقی صاحب ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا جو پیپر ہے انٹیگریٹڈ پاور سولوشن اینڈ ریزیلینٹ اینڈ سسٹینیبل پروجیکٹس, تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اور ان کو اسسٹ کر رہے ہیں ساتھ موجز بھائی, تو آئی تھنک کہ موجز بھائی لیٹر آن اس کو جوائن کریں گے. تو اسٹارٹ انجینئر صاحب کر رہے ہیں, تو انجینئر اصغر ایچ صدیقی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈلی آئیں اور اسٹارٹ. My colleague, my partner Mojis Mehdi, اور جو ریمیننگ 2 لاسٹ سیگمنٹس ہیں اس کو پھر میں پریزنٹ کرنے کے لیے دوبارہ آؤں گا. میں انوائٹ کرتا ہوں موجز مہدی سے کہ شروع کریں اس کے بعد. السلام علیکم اینڈ تھینک یو انٹرپرینیور اینڈ آل دی آڈینسز جو یہاں اس وقت موجود ہیں. آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے اس کا ٹائٹل ہے ان سمرائز فرام بلڈنگ فار ٹمارو. تو ہم اسی کو لے کے چلیں گے اس ٹاپک کو, ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ what is building for tomorrow. As Azhar Sahab has mentioned, اس presentation کے 3 حصے ہیں. I will be focusing on the why of this project. کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے اگر اس کا کیوں نہ معلوم ہو تو آپ منزل مقصود پہ وقت پہ نہیں پہنچ سکتے. So in order to understand the why, ہم نے اس ٹوٹل پریزنٹیشن کو 3 ایجنڈاز پہ کنٹینیو کیا ہے. ون از ہاؤ ٹو گیٹ آپٹیمائزڈ انرجی کاسٹ. ایک ریسپیکٹیبل پریزنٹر نے پہلی پریزنٹیشن بھی اسی پہ کی تھی, انہوں نے انرجی مکس پہ فوکس کیا تھا. ہاؤ ایور ہم صرف اس کو ٹچ کرتے ہوئے نکلیں گے. انرجی مکس از ناٹ آر پارٹ آف ڈسکشن ٹوڈے. جو سیکنڈ ٹاپک ہے یا کہنے کے ایجنڈا ہے, دیٹ از ہاؤ ٹو گیٹ اے ریلائبل اینڈ ریزیلینٹ پاور سورس. اینڈ تھرڈ از واٹ از آر رول ان شیپنگ دا فیوچر آف سسٹینیبل پاور. اگر ہم پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ایٹ اے گلانس دیکھیں تو بیسکلی 3 چیزوں پہ ہی فوکس ہے اگین پرابلم اسٹیٹمنٹ میں. ون از دا انکریزنگ انرجی کاسٹ, اس کی ڈیٹیل آپ کو بھی پریزنٹ کرتے ہیں. دا سیکنڈ از net metering is the new trend, but is this the absolute option? Is net metering the absolute solution? اس پر میں بات کریں گے. ایک تیسرا ٹاپک ہے جس کو ایکچولی جو کنورٹ کرے گا پوری پریزنٹیشن کو, اینڈ دیٹ از جو ملینز آف لوگ کراچی کے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا ریلیف ہے, ان کے لیے کیا package hai, because they cannot deploy solar, they cannot deploy net metering. So what can be done? Before going into the details, again I clearly एक disclaimer देना चाहूँगा कि we are not here to bring any accountability or malign the utility company or the regulatory authority or any other organization. Whatever we are presenting here are facts or the communication being printed or presented in electronic media. اس سلائڈ کا سمرائز فارم میں ایک ون لائن ایجنڈا ہے کہ the cost of energy is increasing. As you can see from the graph down in the slide, that from 1991 till today, the cost of energy is increasing. We haven't seen any dip in the energy cost. You can see there's a cutting that کئی کنزیومر کو ایڈیشنل سرچارج دینا ہوتا ہے 1.52 روپیز کا. ایک اور اس کے اندر کٹنگ لگی ہوئی ہے کہ ایڈیشنل سرچارج کے نام سے PHL کو ہم 3.23 روپیز دیتے ہیں پر یونٹ کاسٹ. ان فیکٹس اینڈ فگرس کو اسٹیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپارٹ فرام انرجی مکس اینڈ اپارٹ فرام ڈفرنٹ فیکٹرز there are other issues which are increasing the energy cost, and in near future we are not seeing anything جس کی وجہ سے یہ نیچے آ سکے unless and until
until we take very severe measures. We have done our own analysis. This is the real-time data. We have evaluated the bills, utility bills of different consumers. जिसके अंदर हमने एक अपार्टमेंट रेजिडेंट का बिल evaluate किया है. Then there is a bill, the commercial tower, and there is another evaluation for the industry. As you can see from this slide, the data is shown in 3 different colors. The blue indicates the unit cost. This unit cost is without any duties and taxes. जो ऑरेंज कलर के अंदर डेटा है, that is the total price without GST, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो GST वेव लेते हैं या GST एडजस्टमेंट करते हैं. And last but not the least is the actual unit cost, which is in the gray color. So you can see that in apartment approximately 60 rupees का unit पड़ता है हमें. Commercial towers is touching 79, and let me be very candid with you कि हमने इसको lower side पे रखा है. We have evaluated bills जिसमें अगर हम उनको include करते हैं तो ये numbers skyrocket हो जाते हैं. The second problem statement is the power purchase price. ये again एक ऐसा topic है, इसको generally discuss नहीं किया जा रहा, लेकिन as you can see from the newspaper cuttings again कि इस वक्त जो power purchase price है set है वो almost 22.42 rupees है. However 2023 के अंदर एक मोशन ड्राइव की थी डिस्कोर्स ने, जिसमें नेफ्रा को ये प्रेडिक्शन था कि आप इस प्राइस को bring it down to 9 rupees. ओके, वो मोशन नेफ्रा ने हर बार डिस्कार्ड कर दिया. ये वापस मोशन आई हुई है टू ब्रिंग दिस 22.42 अगेन डाउन टू 11. सो यहाँ हम कहना क्या चाहते हैं, हम सिर्फ यहाँ ये कहना चाहते हैं कि नेट मीटरिंग की जो प्राइस है जिस पे आज बैठ के हम अपने फैसले कर रहे हैं, that price is gonna change either today or tomorrow. ये चेंज किस वजह से आ सकता है? ये चेंज या तो मेथोडोलॉजी में आएगा, how net metering is being built, या इनके रेट्स में आएगा. And it is inevitable. There is this picture is showing the present scenario of Carolina. ये पाकिस्तान में फिलहाल नहीं है because यहाँ मसाइल दूसरे हैं, लेकिन वेस्ट इस चीज़ में आगे जा चुका है कि नेट मीटरिंग के रेट्स चेंज हो रहे हैं, उनका टाइम ऑफ यूज़ आ चुका है, हर घंटे हर दिन के हिसाब से देयर इज़ अ डिफरेंट रेट, एंड उसकी जो इवेंचुअल एडवांटेज है दैट इज़ नॉट फॉर द एंड यूज़र. हैविंग सेड दिस, डोमेस्टिक यूज़र के पास जो विलास में यूनिट्स में 1 यूनिट्स में रहते हैं, बेंगलुरु में कराची की ज़बान में गए तो उनके पास स्टिल दिस इज़ द बेस्ट शॉट टू गो विद द नेट मीटरिंग. हाउएवर ये जो लार्ज स्केल और मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स हैं, they have different options. They need to explore different options, and that is what we are going to present in the upcoming slides. In the last point, the net metering thing, it is never a breather for the residential apartments. ये खुसूसन residential apartment पे target करने की वजह ये है कि the landscape of Karachi has changed. पूरे पाकिस्तान में इस वक्त Karachi is one of those cities जिसने vertically सबसे ज़्यादा जो है grow किया है. Millions of people are living in residence, and we have no respite for these residents. इनके लिए कोई relief package नहीं है. और हमने जो है वो जो इस residential apartment को consider करने की एक और important वजह है, that is the lower power density जो कि apartment building की होती है because of different diversities. Is in order to explain you in detail, we have presented a case study. जिससे you can get an idea what we are talking about and how we are going to solve this problem. So in order to present the case study and upcoming slides, I will request my colleague, my senior, my mentor, Nazar Siddiqui, to please come on the stage. Thank you, Mojis. मोजिस ने मेरी बहुत सपोर्ट किया और जितने भी डाटा भी कलेक्ट किया है, इन्होंने बहुत कुछ किया था, लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम कम है, हमने इसको रिड्यूस करके समराइज़ कर दिया है ताकि हम अपना जो मेन मकसद है वो बता सकें. जो कुछ मोजिस ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जिक्र किया है उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए नेक्स्ट एजेंडा हमारा है केस स्टडी का. तो केस स्टडी से पहले तो हम ये साबित करेंगे कि हम नेट मीटरिंग से कितना बेनिफिट ले रहे हैं और कितना बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बगैर कितना बेनिफिट ले सकते हैं. तो एक प्रूफ तो ये
اور دوسرا جو پرابلم تھا ان لوگوں کا جو کہ ریزیڈنٹ ہیں, اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور جو اپنے گھروں میں اپنی انرجی کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے کوئی پی وی پینل نہیں لگا سکتے, ان کے لیے کیا حال ہے. تو یہ دو چیزیں ہماری پہلے ایک سیگمنٹ میں ہے, پہلے کیس اسٹڈی اور اس کے بعد نیکسٹ میں بتا رہا ہوں. Basically, this case study will give you a real picture of financial impact of an on-grid solar system, and it will also help you to move one step ahead to get more financial benefits, which is the main purpose of our presentation. ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ ہمارے مائنڈ سیٹ ہے, ہم جو کہتے ہیں نا یار چلو یار کچھ نہیں ہونے سے تو بہتر ہے نا, وہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, اس کو ہمیں پتا ہے. جو میں نام نہیں بتانا چاہ رہا کیونکہ آئی ڈیڈنٹ گیٹ پرمیشن فرام مائی کلائنٹ ٹو شو دیئر نیم, اس لیے میں نے یہ ایجوکیشنل کمپلیکس ہے اور اس کا جو کنیکٹڈ لوڈ ہے اٹ از اباؤٹ 1.5 میگا واٹ, میکسیمم ڈیمانڈ 800 کلو واٹ, انرجی کنزمپشن جو پر ایئر اٹ از اباؤٹ 1.6 ملین یونٹس پر ایئر KWH. سولر سسٹم بھی ابھی ہم نے وہاں انسٹال کروایا 1.4 میگا واٹ. اب اس کے جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کے ذریعے کیا بینیفٹ مل ہے اور ہم اور کیا کچھ کر سکتے ہیں, تو یہ ہمارا ہی ٹارگیٹ ہے کہ ہم کس طرح آپٹیمائز کریں گے, فائنینشیل امپیکٹ کیسے بہتر کریں گے اپنے سجیشنس. یہ آپ کو ٹائم کم ہے اس لیے میں اس میں یہ بیسک ڈائیگرام ہے آن گریڈ سولر سسٹم کی, اس کو میں اسکپ کر دیتا ہوں. یہ ایک انرجی انالیسس جو ہم نے وہاں پر کئی دن لگا کے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا, الیکٹریسٹی بل لیے, تمام چیزیں کرنے کے بعد یہ سمرائز کر کے ایک سلائڈ میں لے کے آ گئے. جو آپ بڑا انٹرسٹنگ ہے, پلیز کو ذرا غور سے دیکھیے گا. اردو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو فاروقی صاحب نے اردو میں اسپیچ کی تھی سب نے سنی تھی میرے خیال سے. تو ان کی جو ٹوٹل جنریشن ہے سولر کی اٹ از اباؤٹ 2.2 ملین یونٹس یا کلو واٹ آور پر ایئر. یہ جو ٹوٹل انرجی کنزیوم کرتے ہیں اپنے کمپلیکس میں اٹ از 1.6 ملین اسکوائر فٹ. جو سرپلس ہے اٹ از اباؤٹ 650,000 یونٹس پر ایئر. اب کیا کریں, یہ جو سرپلس ہے اسے کیا کریں, یہ سرپلس رات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے پاس اسٹوریج نہیں ہے. تو ان اینی کیس دے ہیو ٹو ایکسپورٹ دس انرجی ٹو کے تھرو نیٹ میٹرنگ. تو ایڈوانٹیج وہ لے رہے ہیں اس میں, وہ یہ لے رہے ہیں کہ ان کا بل جو شروع میں آتا تھا وداؤٹ سولر that was about 130 million rupees 130 million rupees per year, جو کہ ریڈیوس ہو کے 55 ملین ایوریج آ گیا ہے. اٹ مینس کہ دے آر گیٹنگ بینیفٹ آف 75 ملین روپیز پر ایئر. یہ اس میں خوش ہے کہ ماشاء اللہ پہلے ہمارا کو اتنا بل آتا تھا, اب تو 75 ملین روپیز ہمارے کم ہو گئے, خوش ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں زیادہ خوش مت ہو, آپ اس سے بھی زیادہ خوش ہو سکتے ہیں. جو یہ السٹریشن ہے وہاں کی ایکچوئل ہے کہ اینوئل ایکسپورٹ آف انرجی ہے وہ 650,000 کلو واٹ آور ہے. پرائس آف ایکسپورٹ انرجی جیسے کہ ابھی مجید نے بتایا کہ روپیز 22.42 پر کلو واٹ آور ہے. کاسٹ آف ایکسپورٹ انرجی کتنی ہوئی, 14.5 ملین روپیز پر ایئر ہو گیا. تو آپ کے سب کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ یقیناً ان کو یہ 14.5 ملین روپیز کا بینیفٹ مل رہا ہوگا کیونکہ انہوں نے اتنی انرجی ایکسپورٹ کی. ایسا نہیں ہے. اگر آپ پہلا فیکٹ دیکھیں گے کہ یہ 650,000 کلو واٹ آور جو انرجی ایکسپورٹ کر رہے ہیں 22.4 روپیز سے, تو ان کی جو کاسٹ ہے دیٹ از 14.5 ملین روپیز. اگر اتنی ہی انرجی وہ امپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے, اس کی کاسٹ کتنی ہوگی 39 ملین روپیز. یہ بات آپ نے یقیناً اس کو پک کر لیا ہوگا کہ ہم ایکچولی جو انرجی ایکسپورٹ کر کے جو واپس ہمیں اس کے پیسے مل رہے ہیں وہ 14 ملین ہے, اور اگر ہم اتنی ہی انرجی امپورٹ کریں گے تو ہمیں 39 ملین روپیز دینا پڑیں گے. دس از دا ڈفرینس. فیکٹ تو یہ ہے کہ کنزیومر جو ہے نا 650,000 روپیز 650,000 یونٹس انرجی دے آر ایکسپورٹنگ ٹو کے الیکٹرک, اور ساتھ ساتھ 55 ملین روپیز کا وہ الیکٹرک بل کے تھرو پیمنٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ 14.5 ملین روپیز سے انہیں کچھ نہیں مل رہا, بلکہ یہ دو چیزیں دے رہے ہیں. ان کو 650,000 یونٹس بجلی بھی دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو 55 ملین روپیز پے کرنے پڑ رہے ہیں تھرو الیکٹرک بل. یہ ایک فیکٹ. اس کا کنکلوژن کیا ہے, تو کنکلوژن یہ ہے کہ وی مسٹ ہیو اے اسمارٹ سولوشن ٹو سیو مور منی
and to make the system more cost effective. यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मुश्किल काम है वो ये है कि कोई नई चीज़ या कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस करना और उसका एक्सेप्टेंस उसका जो है लेना चाहिए, बहुत मुश्किल काम है. इवन अगर हम एज ए कंसल्टेंट हम किसी को कोई आम स्विच जो लाइट कंट्रोल स्विच होता है इसको भी हम बता दें कि जी ये नया स्विच है इसको इस्तेमाल करें, तो सबसे ज़्यादा पूछता है कि कहाँ लगाया आपने, इससे पहले कहाँ लगाया. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एलिकन एसोसिएट्स में आप कोई एलिकन की बातें करने नहीं आए, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, हमारी टीम की बात करते हैं. हमने अब तक 38 ईयर्स में जो हमने काम किया है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है नई इंट्रोड्यूस करवाई हैं और माशाल्लाह इस वक्त सारे कंसल्टेंट इसको अडॉप्ट किए. हमें एक पायलट प्रोजेक्ट हमने कन्विंस कर लिया अपने क्लाइंट को जिसके पास तकरीबन 8-10 के करीब टावर्स हैं. तो उन्होंने हमें एज ए पायलट प्रोजेक्ट कहा कि 4 टावर्स को आप एनर्जाइज कर दें किसी तरह और विदाउट ग्रिड पावर. ये हमारे पास टास्क है और वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट उसकी हमने थोड़ी सी फिजिबिलिटी स्टडी बनाई है और वो स्टडी हमने समराइज करके आपके लिए लेके आए. हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये था कि टू डेवलप ए पावर सप्लाई सिस्टम विद सस्टेनेबल सब्सटेंशियल यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड हैव फॉलोइंग फीचर्स. कौन से फीचर्स हैं? कि बी इंस्टॉल्ड इन स्टेजेस, जनरेट लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट स्टेबल एंड अनइंटरप्टेबल एंड रिलायबल एनर्जी, लॉन्ग लाइफ और एक्सेप्टेबल ROI. सर आप इंटरप्ट तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ी सी इंटरप्शन आई कि टाइम कम होता था. बस फिक्र नहीं करें, 5 मिनट है मेरे पास, मैं देख लिया. तो बेसिक जो हर्डल थी हमारी जो हमें मिल रही है कि ये कि PV पैनल जो है अगर हम लेते हैं और डिपेंड करते हैं तो इसमें इंटरमिटेंटली आपकी जनरेशन होती है. पहला हर्डल ये था. सेकेंड जो हर्डल था वो ये था कि जितनी हमें स्पेस चाहिए सरफेस एरिया चाहिए टू जनरेट रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट टू रिक्वायर्ड एनर्जी, वो हमारे पास स्पेस नहीं था. तो कंपनसेट दैट एनर्जी हमने यूज़ किया आपका वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन. तो ये वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की भी हम बात करने के लिए घंटा गुजार सकते हैं, लेकिन उससे हम आगे बढ़ जाते हैं. और इसके अलावा जो हमने कंपोनेंट्स मैं शॉर्ट कर रहा हूँ कि हमने जो 4 कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट लिए एक सोलर PV पैनल, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, एक DG सेट्स के इन केस अगर आपके रेनी सीजन्स होती हैं उसमें जनरेशन कम होती है या अगर आपके ऐसे वेदर होता है कि इसमें हवा नहीं चल रही होगी आपकी, तो डेफिनेटली हमारी जनरेशन कम होगी. तो कंपनसेट दैट डिप हम डीजल जनरेटर इस्तेमाल करते हैं. जो कन्वेंशन सिस्टम है उसमें नॉर्मली होता है जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है कि ग्रिड पावर जो है वो कि इलेक्ट्रिक से लेते हैं, स्टैंड बाई जनरेटर लेते हैं, सम टाइम 100% बैकअप के लिए, कभी पार्शियल बैकअप. जो प्रपोज सिस्टम जो है विदाउट ग्रिड जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसमें प्राइम पावर जो है सोलर एंड स्मॉल वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है और स्टैंड बाई पावर जनरेटर है. और थर्ड जो आइटम है वो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या इंडक्टिव स्टोरेज बैंक. इसके बारे में अभी सिर्फ इतना समझ लिया, मैं स्किप कर रहा हूँ डायरेक्ट में कि ये स्टोरेज बैंक है, सिर्फ बैटरी नहीं, इट इज़ अ कंप्लीट सिस्टम जिसमें इन्वर्टर भी होंगे, BMS भी होगा, एयर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी होगा बैटरी के लिए और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम होगा. ये तमाम चीज़ें जो है बैटरी की लाइफ को बढ़ाती हैं और सस्टेन करती हैं, जिसकी वजह से जो है ना इन बैटरी जो जितने भी आपके स्टोरेज बैंक आ रहे हैं इसकी मिनिमम वारंटी जो सप्लायर देते हैं वो 10 ईयर दे रहे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लाइफ इसकी 20 ईयर्स होते हैं. ये आपकी एनर्जी बैलेंस जो हमने 4 बेड और 3 बेड में आखिरी में आ जाता हूँ, टाइम कम है कि एक दिन के अंदर जो हमें टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 11,893 यूनिट्स चाहिए 4 टावर के लिए एक दिन. ठीक है, ये आप एक कुछ देख रहे हैं. अजम्पशन हमारे सारे इसमें लिखे हुए कि अगर 400 हमने ये किया है कि इलेक्ट्रिक बिल हमने कलेक्ट किए कई बिल्डिंग्स के, तो जहाँ पे 4 बेड अपार्टमेंट्स हैं वहाँ मैक्सिमम 375 यूनिट्स पर मंथ का एवरेज आता है. और जहाँ आपका जो है वो 3 बेड अपार्टमेंट्स है वहाँ मैक्सिमम जो है वो 325 यूनिट्स पर मंथ का एवरेज आता है, क्योंकि उसमें कुछ अपार्टमेंट हर जगह पे खाली होते हैं, तो उसका भी हमें एक एडवांटेज मिल जाता है. हमने हाई हाइट पर रखा हुआ है, 400 वहाँ रखा है, 4 बेड के लिए 350 रखा है इसके लिए. इसका टोटल एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है पर डे इट इज अबाउट 11,000. इसको 12,000 अज्यूम कर लें. अब देखिए जो 12,000 एनर्जी जो है जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड है उसमें PV तकरीबन 5,760 कंट्रीब्यूट कर रहा है,
वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 30,000 और बाकी जो रिमेनिंग माइनस जो बचेगा चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो वो डीजी सेट पूरा करेगा। ठीक है, ये एक टावर का बेसिक प्लान है। हम ऊपर छत पे जो है और इसकी हम स्टडी कर चुके हैं, ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ ये थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है और हम सिर्फ प्रोक्योरमेंट में लग चुके हैं। मटेरियल हमारे पास कुछ आने शुरू हो गए जो कि हम इसको इंस्टॉल कर देंगे और नेक्स्ट टाइम में इसकी स्टडी इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर आपको पेश करेंगे। ये विंड टरबाइन, स्मॉल विंड टरबाइन छत की वजह से, जगह कम होने की वजह से लगा रहे हैं। मैक्सिमम जो कैपेसिटी होगी विंड टरबाइन की दैट विल बी 10 किलोवाट, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो एक छत पर जो हमें जगह मिल रही है एक टावर की छत पे, इट इज़ 320 किलोवाट सोलर से और तकरीबन 120 किलोवाट विंड टरबाइन से हम ले रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि छत पे जो है सोलर है और उसके बाद विंड टरबाइन है, दोनों के अलग अलग कंट्रोलर चूँकि होंगे। अगर आफात यहाँ होते हैं तो वो इसको करेक्शन कर देते हैं, हाँ बिल्कुल ये सही है, बल्कि अगर उसको वेरीफाई कर देते कि हम इन दोनों को ऊपर नहीं कर रहे हैं लेकिन इसको मर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे जो आपका देख रहे हैं कि ये एनर्जी स्टोरेज बैंक लगे हुए यहाँ पे आएंगे और ये एनर्जी स्टोरेज बैंक इसको मर्ज करके बैटरी में स्टोर कर देगा। पूरे टावर जो हमारे पास जब भी बैटरी एम्प्टी होगी, ड्रेन हो जाएगी आपकी, तो इसको अगर हम डीजल जनरेटर चला रहे हैं तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, तो हमने सारे जनरेटर एक सेंट्रलाइज कर दिया, एक जगह पे सारे जनरेटर लगा दिए। और चूँकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो प्रैक्टिकली हम वहाँ ये कर रहे हैं कि उसको स्टेप अप करके 11 kV में स्टेप अप करके एक रिंग में बना के हम तमाम टावर्स को उसको सप्लाई कर रहे हैं। ये इस तरह के इस तरह की जो प्रोजेक्ट है ना, ये हमारे क्रेडिट में सबसे पहले आते हैं इंशाल्लाह ताला, और हमने ऐसे बहुत से काम किए हैं। कंक्लूड कर दीजिए। यस सर, क्या बिल्कुल करता हूँ। कितने मिनट हो गए हैं? हाँ, तो परेशानी किस बात की, 2 मिनट बात की। तो वो अब इस पे देखिए, आपने एक खास बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो हमारे एनर्जी स्टोरेज बैंक लगे हुए हर टावर के नीचे, ये तकरीबन 1000 किलोवाट आवर के ये स्टोरेज बैंक है और ये तमाम के तमाम एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और तमाम के तमाम इंटरलिंक हैं पावर केबल से। उसकी रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब भी बैटरी ड्रेन हो तो ये ना हो कि एक बैटरी ड्रेन हो रही है और इस पर एक को यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, तो कम, ये सारी की सारी बैटरी एक साथ ड्रेन होगी और एक साथ ही चार्ज होगी। ये सारी स्टडी, ये तमाम चीज़ें हम कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए कि मैं इसको 1 मिनट में बता देता हूँ कि तमाम कॉस्ट हमने ले ली इसमें एनर्जी की जो ली है। इसमें देखिए कि सोलर सिस्टम की जो हमने एनर्जी की 4 रुपीज़ पर यूनिट ली है, विंड टरबाइन की थोड़ी कम होती है, ऑपरेशन कॉस्ट 3 रुपीज़ ले ली है, और डीजी सेट से जो एनर्जी होगी जो हम जनरेट कर रहे हैं उसकी 100 रुपीज़ पर किलोवाट आवर की टोटल हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो 334,573 आ रही है। तो इस तरह पर यूनिट कॉस्ट जो आ रही है हमारी, दैट इज 28 रुपीज़। Even we are using and we are getting energy through diesel generator set, even then हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है it is 28 रुपीज़। तो इस 20 हम ROI आपके आखिर में आ जाते हैं कि जो एडिशनल हमारे इक्विपमेंट है हमने सिर्फ उसको कैपिटल कॉस्ट में लिया है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, केबल का, ट्रांसफार्मर, तमाम चीज़ें ऑलरेडी वो किसी न किसी वे में तो लगाते हैं। अगर हम ये सिस्टम नहीं लगाएंगे तो वो तो सब लगाना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट उसको हमने कैपिटल कॉस्ट में नहीं लिया है। ये जो एडिशनल कॉस्ट है आपकी 362 मिलियन है, इसको हमने लिया है। एनर्जी कंजम्पशन पर डे 1000 किलोवाट आवर हमने मैक्सिमम सर्वे एनर्जी कंजम्पशन पर मंथ ये हो गया आपका। सेलिंग प्राइस हमने 28 के बजाय 48 रुपीज़ रखी। सवाल ये होता है कि बाद में बोलेंगे कि आप एनर्जी जनरेट करके रीसेल नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम नेपरा। उन्होंने हमें जो बिल्डर्स हैं हमने उनको सजेशन ये दी कि आप 300 या 350 यूनिट्स को आप फिक्स करके अपने इसकी कॉस्ट जो है जो मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं पर मंथ उसमें ले लें, तो आप सेल नहीं कर रहे होंगे। जो उससे ज़्यादा एक्सीड करेगा उससे एडिशनल चार्जेस भी नहीं देगा, तो आपकी एक फिक्स चार्जेस जो होंगे वो भी अश्योर हो जाएंगे आपके। और इस तरह जो है जो एक क्वेश्चन उठ सकता है कि ये रीसेल कैसे कर रहे हैं एनर्जी को, तो वो मसला भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा आप फिक्र नहीं करें, हम सारे रास्ते जानते हैं। ये उनकी गारंटी थी, इसकी मैं मजीद काम करता हूँ।
हमारी टोटल जो ROI आ रहा है दैट इज 4.5 years, तकरीबन 4.5 साल। 4.5 साल में ये सारी की सारी अमाउंट जो हमारी निकल के आ जाएगी, और जब वो हमारा पेबैक हो जाएगा आपका तमाम एडिशनल कॉस्ट का, तो हम वी कैन रिड्यूस फर्दर जो हमारी एनर्जी सेल कर रहे हैं वो 48 से हम कम होकर 40 भी आ सकते हैं, 35 भी आ सकते हैं। ये हमारा मैक्सिमम। तो उसका कंक्लूजन ये है कि प्लीज़ आप सब लोग ये नेट मीटरिंग के ज़रिए जो अनजाने में आप अपनी महंगी बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो ना करें, बल्कि इसको स्टोर करने की कोशिश करें, इसको यूटिलाइज करें। और ये प्रोजेक्ट हमें जो ये मिला है रेजिडेंशियल का, वो तो हम कर ही रहे हैं, जिसमें कि सिस्टम लगा रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको केस स्टडी बताई थी, और जब मैंने उनको तमाम की फिगर्स हमें बताई स्टडी करने के बाद, उन्होंने कहा कि भाई आप फौरी तौर पे हमारे सिस्टम के लिए भी इंतज़ाम कर दें कि हमें कितनी बैटरी स्टोरेज लेना पड़ेगी ताकि हम उस पर चलेंगे। तो ये मेरा जल्दी बात करके मैंने बहुत सी चीज़ें लिस्ट भी कर दी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपना मैसेज आप तक को, जो अपना कॉन्सेप्ट है वो आप तक को कम्युनिकेट कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you.